ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بیٹا، اپنی ساری بکس وغیرہ رکھ لی ہیں نا؟ ایک تو تم بھلکڑ اتنی ہو، کوئی نہ کوئی بک روزانہ گھر پر چھوڑ کر چلی جاتی ہو اور پھر بعد میں آ کر پچھتاتی رہتی ہو کہ وہ تم بک نہیں لے کر گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اپنا بیگ چیک کر لو، فالتو کی چیزیں بیگ سے نکالو اور اپنی ساری کتابیں رکھو۔ مسز نعیم ہمیشہ کی طرح کچن میں کام کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو ہدایات دے رہی تھی، جو اسکول کے ٹائم سے ہی اپنی کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بک گھر پر ہی بھول کر چلی جاتی تھی اور واپس آ کر کہتی تھی کہ مام، صرف آپ کی وجہ سے آج میں پورا پیریڈ باہر کھڑی رہی۔ اگر میرا بیگ چیک کر دیتی تو مجھے باہر نہ کھڑا ہونا پڑتا۔ جس پر اس کی مام کہتی، اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود اپنا بیگ چیک کرو۔ اب وہ کالج میں پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی بکس گھر پر بھول جاتی تھی۔ اس کا بیگ زیادہ تر میک اپ کے سامان سے بھرا رہتا تھا۔ بسما کو میک اپ کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ جب بھی مارکیٹ جاتی کوئی نہ کوئی نئی چیز خرید کر لے آتی تھی۔ حالانکہ مسز نعیم اسے روکتی رہ جاتی تھی، لیکن وہ کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنتی تھی۔ اسے پڑھائی سے زیادہ دوسری چیزوں میں دلچسپی تھی، اس لیے ہمیشہ اس کا رزلٹ بھی خراب آتا تھا۔ بسما ساری چیزیں اپنے بیگ میں رکھ کر کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی، مام، میں جا رہی ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ مسز نعیم نے وہیں سے اسے آواز دی اور کہا کہ بیٹا، کم سے کم ناشتہ تو کرتی چلی جاؤ، روزانہ تم ایسی ہی چلی جاتی ہو، اپنی صحت کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے۔ لیکن وہ انہیں بائے کہتی بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ افسوس کرتی رہ گئی کہ آخر یہ لڑکی نہ جانے کب سدھرے گی۔ بسما کا رخ قریبی بس اسٹاپ کی طرف تھا۔ کالج کی بس آنے میں بس تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو انکل گاڑی نہیں روکتے تھے، وہ فوراً سے نکل جاتے تھے۔ اس کے خیال میں وہ آج وقت پر پہنچ گئی تھی، اس لیے کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن بس تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ جب بس نہیں آئی تو اس نے سوچا میں پبلک ٹرانسپورٹ پر بیٹھ کر چلی جاتی ہوں۔ پھر اس نے سامنے سے آتی پبلک بس رکوائی اور اس میں بیٹھ کر کالج کی طرف چلی آئی۔ کالج کے گیٹ پر اتری تو دیکھا سامنے ہی کالج کی بس کھڑی تھی اور اس میں سے لڑکیاں اتر رہی تھیں۔ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ میں پہنی واچ پر ٹائم دیکھا تو آج بھی وہ لیٹ تھی۔ آج پھر اس نے کالج کی بس مس کر دی تھی۔ اس کی دوست اسے دور سے دیکھ کر ہی ہاتھ ہلاتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا بسما، آج پھر سے تم لیٹ ہو گئی؟ بسما نے اس سے کہا، ہاں یار، میرے خیال میں تو میں جلدی نکلی تھی اور ناشتہ بھی نہیں کیا اس چکر میں۔ جب باہر آئی تو دیکھا بس تھی ہی نہیں۔ کب سے بس کا انتظار کر رہی تھی، اسی لیے مجھے پبلک ٹرانسپورٹ پر آنا پڑا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے کالج کے گیٹ سے اندر چلی آئیں۔ آج ان کی کلاس کی اسمبلی نہیں ہونی تھی، اس لیے کلاس میں آ کر بیٹھ کر بسما اسے کچھ نیو میک اپ کی پروڈکٹس دکھانے لگی، جس پر فاریہ نے اس سے کہا کہ کیا یار، ہر وقت تم میک اپ میں ہی گھسی رہتی ہو، کبھی پڑھائی پر بھی اپنا دھیان دے دو۔ تمہیں پتہ ہے نا آج انگلش کا ٹیسٹ ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم نے بالکل بھی تیاری نہیں کی ہوگی۔ یہ سن کر بسما اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی اور کہنے لگی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آج ٹیسٹ ہے؟ میں تو بھول ہی گئی تھی اس بارے میں۔ میم تو مجھے بالکل نہیں چھوڑیں گی، ویسے بھی میں ان کا ہر ٹیسٹ مس کر دیتی ہوں۔ اگر آج کا ٹیسٹ میں نے مس کیا تو یقیناً وہ گھر پر بتا دیں گی۔ اس کی انگلش کی ٹیچر انہی کے ایریا میں رہتی تھی اور اکثر ہی اس کی موم سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کی موم کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنی پڑھائی کو بالکل بھی سیریس نہیں لے رہی تو وہ اسے خوب ڈانٹیں گی اور کیا پتہ کہیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ اور وہ ہرگز بھی ٹیوشن نہیں جانا چاہتی تھی۔ کالج میں بھی وہ مر مر کر ہی آتی تھی۔ فاریہ نے اسے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ تمہیں اچھے سے پتہ ہے یہ ٹیسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور آج تم اس ٹیسٹ کو مس بھی نہیں کر سکتی کیونکہ پہلا پیریڈ ہی میم کا ہے۔
अब की बार तो बिस्मा बहुत बुरी फंसी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब टीचर क्लास में आई और उन्होंने सबको टेस्ट के लिए पेपर्स निकालने को कहा तो वो खामोशी से बैठी रही। मैम इसके पास आई और कहने लगी, क्या हुआ बिस्मा, तुमने टेस्ट नहीं देना? वैसे भी तुम किसी टेस्ट में प्रेजेंट नहीं होती और हमेशा कहीं ना कहीं गायब रहती हो। अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? यकीनन तुमने टेस्ट याद नहीं किया होगा। तुम्हें कितना कहा था कि प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अब तुम टेस्ट दिए बिना यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। चलो जल्दी से पेपर निकालो और टेस्ट लिखना शुरू करो। नाचार बिस्मा ने अपने बैग से जर्नल निकाला और एक पेपर फाड़कर उस पर अपना नाम वगैरह लिखना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं लिख सकती, इसलिए खामोशी से बैठी रही। चीटिंग करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि मैम हर वक्त सर पर सवार रहती थी और वो अपने डेस्क पर अकेली बैठी थी। सबको अलग अलग बिठाया गया था ताकि कोई किसी तरह से चीटिंग ना कर सके। जब पीरियड ख़त्म होने लगा तो मैम ने सबसे टेस्ट पेपर ले लिए। बिस्मा का पेपर बिल्कुल ही ब्लैंक था। इसने कुछ भी नहीं लिखा था क्योंकि इसे कुछ आता ही नहीं था। वो जानती थी कि आज उसकी खैर नहीं, घर पर उसकी मॉम को पता चल जाएगा कि इसने टेस्ट में कुछ नहीं लिखा और फिर एक लंबा लेक्चर भी सुनना पड़ेगा। इसने फारिया से कहा कि चलो अब हम कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेंगे। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, जिसकी वजह से अब मुझे भूख लग रही है। मगर फारिया ने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, अभी नहीं जा सकती क्योंकि नेक्स्ट पीरियड शुरू होने वाला है। अगर तुमने क्लास बंक करनी है तो तुम चली जाओ। फारिया पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए दोस्ती एक साइड पर रखकर पढ़ाई को तरजीह दे रही थी। बिस्मा ने अपना बैग उठाया और कैंटीन की तरफ चली आई। उसका अगला पीरियड लेने का भी कोई मूड नहीं था। उसे उर्दू की टीचर बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो इनके लंबे लंबे लेक्चर सुनकर बोर नहीं होना चाहती थी। इसीलिए सोचा कि कुछ वक्त कैंटीन में गुजार लेगी। अभी कैंटीन में आकर बैठी ही थी कि इसके सामने वाली चेयर घसीट कर एक लड़का वहाँ बैठ गया। इसे काफ़ी हैरत हुई कि ये लड़का यहाँ कैंटीन में क्या कर रहा है। वैसे तो ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का कॉलेज था, लेकिन सामने बैठा लड़का कॉलेज यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं था और एज में भी काफ़ी बड़ा लग रहा था। लगता ही नहीं था कि कॉलेज का स्टूडेंट है। 25-26 साल का होगा। वो बिस्मा को बड़े ही गौर से देख रहा था। उसके यूं घूर कर देखने पर बिस्मा को शदीद गुस्सा आया और इसने उससे कहा कि ए मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरी टेबल पर आकर बैठने की? बाकी जगह भी खाली है, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। जिस पर सामने वाला मुस्कुराकर बोलने लगा, अरे वाह, आप बोलती भी हैं। मुझे तो कब से लग रहा था कि आप गूंगी हैं। ये सुनकर बिस्मा का दिल किया। पास रखी बोतल उठाकर उसके सर पर दे मारे, लेकिन बमुश्किल इसने अपने गुस्से को काबू किया और कहा कि आप प्लीज़ उठकर वहाँ चले जाएं, या फिर मैं खुद ही उठकर चली जाती हूँ। बिस्मा उठने ही लगी थी कि उस नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मैं उठ जाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उठकर बाहर चला गया। बिस्मा अपना चना चाट खाने में मगन हो गई। जब उठकर जाने लगी तो इसने देखा कि वहाँ पर एक वॉलेट रखा हुआ था। वो चौंक गई। यकीनन ये उसी लड़के का वॉलेट होगा। वो यहाँ पर अपना वॉलेट छोड़कर चला गया। इसने जैसे ही वॉलेट को उठाकर खोल कर देखा तो उसमें बहुत से नोट रखे हुए थे। शायद ये किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। उसने उसके वॉलेट को देखते हुए सोचा और फिर वॉलेट को इस ख्याल से अपने बैग में रख लिया कि वो इसे ढूंढ कर ये वॉलेट दे देगी, वरना यहाँ पर रहा तो कोई इसमें से पैसे वगैरह ना निकाल ले, या हो सकता है वो खुद ही अपने वॉलेट को ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। फिर वो पूरा दिन वहीं बैठी उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो वहाँ पर अपना वॉलेट ढूंढने नहीं आया। बिस्मा को शदीद गुस्सा आया। कैसा लापरवाह इंसान है, अपना वॉलेट यहाँ पर भूल गया और उसे ढूंढने के लिए भी नहीं आया। देखती हूँ शायद इसके अंदर कोई कार्ड वगैरह हो जिस पर उसका एड्रेस लिखा हो, तो जाकर उसको देकर आ जाऊँगी। इतने ज़्यादा पैसे लेकर मैं कैसे घूम सकती हूँ। यही सोचकर उसने वॉलेट थामा और घर की तरफ चली आई।
खरा कर भी वो काफ़ी उलझन में नज़र आ रही थी। मिसिज नईम ने जब इससे पूछा कि क्या हुआ है तो इसने उन्हें सारी बात बता दी। तो वो कहने लगी, ठीक है, तुम कल जाकर उसे उसका वॉलेट वापस कर देना। इतनी सी तो बात है, इसमें परेशानी की क्या बात? अगर तुमने इसमें से कोई चीज़ नहीं ली तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मॉम की बात सुनकर उसने सर हिला दिया। फिर उनकी तरफ देखने लगी कि उन्हें टेस्ट वाली बात पता चली है या नहीं। उसी वक्त मिसेस नईम ने कहा कि तुम्हारी इंग्लिश की टीचर यहाँ आई थी, तुम्हारी बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही थी कि तुम कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, और पहले टेस्ट भी तुमने मिस कर दिए, और आज का टेस्ट भी बिल्कुल ब्लैंक दिया है, कुछ भी नहीं लिखा। ये सब क्या है? तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत लगानी ही पड़ेगी। पापा का नाम सुनकर वो डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं मॉम, ठीक है, मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूँगी। मिसिस नईम जानती थी वो अपने पापा से डरती है। वो थोड़े संजीदा किस्म के थे, इसलिए वो उनके सामने कम ही बोलती थी। मिसिस नईम ने इससे कहा कि मैंने तुम्हारे टीचर से बात की है, आज से तुम उनके पास ट्यूशन के लिए जाओगी, और मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। इंग्लिश का ट्यूशन तुम्हें लेना ही होगा, क्योंकि तुम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें ट्यूशन के लिए निकलना है। अपनी मॉम की बात सुनकर वो मुंह बसोर कर बैठ गई, लेकिन अगली बात सुनते ही कहने लगी, क्या मॉम, आज से जाना है? कल से चली जाऊंगी ना। लेकिन उन्होंने एक भी बात ना सुनी और उससे कहा कि नहीं, तुम आज ही जाओगी, तुम्हारा कल कभी नहीं आता। मैं जानती हूँ कल कोई बहाना बनाकर तुम दोबारा से मना कर दोगी। जल्दी से तैयार हो और निकलो। अपनी मॉम के कहने पर वो जल्दी से तैयार होकर निकल गई। 2 घंटे उसने ट्यूशन लिया और जब वापस आई तो कहने लगी, मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ, इतना ज़्यादा कौन पढ़ता है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। एक तो इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। लेकिन उसकी मॉम ने उसकी कोई बात ना सुनी और मुस्कुरा दी। उसे खाना वगैरह दिया और कहा कि चलो अब तुम सो जाओ, मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त तुम मोबाइल देखती रहती हो, देखो तुम्हारी आंखें कितनी ख़राब हो चुकी हैं। ये कहते हुए मिसेस नईम ने टेबल पर रखा उसका मोबाइल भी उठा लिया। वो जानती थी कि अगर वो मोबाइल पास रख कर लेटी तो कई घंटे उसी पर वेस्ट कर देगी और फिर सुबह उसकी नींद पूरी नहीं होगी। वो उसकी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगले दिन बिस्मा कॉलेज के लिए तैयार होकर निकली तो साथ में वॉलेट भी ले लिया। आज फिर उसने उस अजनबी का इंतज़ार करते कई घंटे गुजार दिए, लेकिन वो अपना वॉलेट ढूंढने नहीं आया। वॉलेट के अंदर एक कार्ड रखा हुआ था जिस पर एक कंपनी का एड्रेस था। इसने सोचा शायद वो यहाँ पर जॉब वगैरह करता हो। मैं कॉलेज से वापसी पर वहाँ जाकर उसे उसका वॉलेट वापस कर दूँगी। किसी की चीज़ रखना भी कितना मुश्किल होता है। यही सोचते वो कॉलेज से निकली और रिक्शे में बैठकर उस कंपनी में चली आई। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर तो वो हैरान रह गई। आखिर कारपोरेट सेक्टर इस तरह का होता है क्या? ये सब तो सिर्फ उसने इंटरनेट पर ही देख रखा था, हकीकत में कभी भी नहीं देखा था। आज पहली बार देख रही थी। वो अंदर आई और रिसेप्शन पर आकर वो कार्ड दिखाया और कहा कि मैं मिस्टर मोइस से मिलना चाहती हूँ, क्या वो यहीं पर जॉब करते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने इसकी बात सुनी और इसके हाथ में थामे कार्ड को देखा तो मुस्कुरा उठी और कहने लगी, आइए मैं आपको उनके रूम तक लिए चलती हूँ। ये सुनकर बिस्मा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे उनके रूम तक नहीं जाना, बस आप उन्हें यहाँ बुला लें, मैं उन्हें उनका वॉलेट वापस कर दूँगी। उस दिन वो वहीं पर छोड़कर चले गए थे और दोबारा कभी वापस ही नहीं आए। इसे ढूंढते हुए मुझे लगा कि इस वॉलेट को उन तक पहुंचा देना चाहिए, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन उठाकर एक कॉल मिलाई और फिर थोड़ी ही देर में मिस्टर मोइस वहाँ पर आ गए। ये वही अजनबी था जो उस दिन कैंटीन में अपना वॉलेट छोड़ गया था। उसने बिस्मा को देखा तो फौरन से मुस्कुरा उठा और कहने लगा, अरे आप तो वही लड़की है ना जो उस दिन कॉलेज में थी? बिस्मा ने कहा, जी जी मैं वही हूँ। तो मोइज़ ने कहा कि यहाँ पर कैसे आना हुआ?
उसकी बात सुनकर बिस्मा कहने लगी, ये आपका वॉलेट वहाँ पर रह गया था। कई दिन से आपका वेट करती रही कि आप आकर इसे ले लेंगे, लेकिन जब आप नहीं आए तो मैं खुद ही आपके पास आ गई। आप यहाँ पर जॉब करते हैं? उसने एक नज़र आस पास दौड़ाई, जिस पर मोइज़ मुस्कुरा उठा और कहने लगा, जी हाँ, मैं यहीं पर जॉब करता हूँ। ये सुनकर पास खड़ी रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई, क्योंकि मोइज़ तो दरअसल इस कंपनी का ओनर था। बिस्मा उसे वॉलेट थमाकर वापस चली आई। मोइज़ ने इसे रोकना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। उसने अपना वॉलेट खोल कर देखा तो उसमें सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। इस लड़की की ईमानदारी पर उसका दिल इसका गर्विदा हो गया। ऐसे ईमानदार लोग आजकल तो बहुत ही कम मिलते हैं। उस दिन इसे लगा कि जैसे इसके ऊपर से कोई बोझ सा उतर गया है। घर आई तो इसकी मॉम ने कहा कि आज इतनी देर क्यों हो गई, तो इसने बताया कि मैं उस लड़के का वॉलेट उसे वापस देने गई थी। आपको पता है मॉम, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है वो, और कंपनी भी मेकअप प्रोडक्ट्स की है। काश मैं भी कभी वहाँ पर जा सकूँ। उसकी मॉम ने कहा, बेटी अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, हमेशा मेकअप के बारे में ही सोचती रहती हो। चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, फ्रेश होकर आ जाओ और खाना खाओ। खाना खाते हुए भी बिस्मा के दिमाग में वो कंपनी बार बार आ रही थी। फिर इसने एक फ़ैसला किया और कहा कि मॉम, मैं उसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। मुझे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी ना। उसकी मॉम ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पास ना तो डिग्री है और ना ही कहीं काम करने का एक्सपीरियंस। तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। खामोशी से पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पापा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि तुम जॉब करो। ये सुनकर वो मुंह बसोर कर बैठ गई। 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद एक दिन जब वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकली तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसने मुड़कर देखा तो एक स्याह रंग की बड़ी सी कार उसका पीछा कर रही थी। आखिर ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? वो दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। आखिर मुझसे किसी को क्या मसला? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही सोचते वो तेज कदमों से कॉलेज की तरफ चली आई। उसने अपनी दोस्त को भी इस बारे में बताया तो फारिया भी सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, आखिर कोई तुम्हारे पीछे क्यों पड़ सकता है? तुम्हारा तो किसी से कोई लेना देना भी नहीं, या फिर हो सकता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई हो। बिस्मा कहने लगी, हाँ, ये भी हो सकता है कि मुझे गलत फहमी हुई हो। खैर, देखते हैं, अगर दोबारा उसने पीछा किया तो तब की तब देखेंगे। अगले दिन दोबारा से कोई उसका पीछा कर रहा था। वो समझ गई कि वाकई में इसका पीछा हो रहा है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग गई। उसकी मॉम इससे कई बार पूछ चुकी थी कि आखिर क्या बात है जो तुम इतना परेशान हो, लेकिन वो उन्हें ये सब बताकर परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उनसे ये बात छुपा ली और कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ। इस बार मैं अच्छे मार्क्स लाना चाहती हूँ। ये सुनकर मिसेज़ नईम खुश हो गई कि चलो उनकी बेटी को भी अब पढ़ाई की फ़िक्र होने लग गई है। यही तो वो चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, लेकिन वो कहीं खोई खोई सी लग रही थी। बहुत बार पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी दोस्त फारिया से फ़ोन करके पूछूं, लेकिन फारिया को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि बिस्मा ने उसे उस दिन के बाद से कुछ नहीं बताया था। वो जानती थी कि वो इसकी मॉम को बता देगी, इसीलिए उसने ये सारी बात अपने तक ही रखी थी। अब तक वो ये नहीं जान सकी थी कि उसका पीछा कौन कर रहा है। कभी किसी ने रुककर इससे कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी। बस कॉलेज तक उसका पीछा किया जाता और उसके बाद फ़ौरन से गाड़ी आगे बढ़ जाती। इसने कई बार रुक कर भी देखा था, लेकिन कोई भी इसके पास आकर इससे मुखातिब नहीं हुआ था। एक दिन इसने सोचा कि वो खुद ही पूछ ले कि आखिर वो कौन है जो इसका पीछा करता है। यही सोचकर जब उस स्याह रंग की गाड़ी के पास गई और खिड़की बजाकर बात करने का इशारा किया, तो वो गाड़ी फ़ौरन से आगे बढ़ गई। ये देखकर इससे काफ़ी हैरत हुई कि अगर वो इसका पीछा कर भी रही है तो इससे बात क्यों नहीं कर रहे। कम से कम कोई वजह तो बताई जाए ना
कि पीछा क्यों किया जा रहा है। उन्हीं दिनों इसने महसूस किया कि इसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान लगने लग गए हैं। इसने कई बार उनसे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बताते थे, ना ही अपनी बीवी को और ना ही अपनी बेटी को। उनके बिजनेस में कुछ परेशानियां चल रही थी, जिसका जिक्र वो घर पर करके सबको परेशान नहीं करना चाहते थे। वैसे भी वो ऑफिस का काम ऑफिस में ही रखते थे। कुछ दिन गुजरे तो उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया। बिस्मा और उसकी मॉम घर पर ही थे जब उन्हें मिस्टर नईम के ऑफिस से फ़ोन आया कि मिस्टर नईम को अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में हैं। दोनों भागी भागी जब हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कि वो दम तोड़ चुके थे और हमेशा हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जा चुके थे। और ये जानकर दोनों रोने लग गई। इस पूरी दुनिया में उनके अलावा इनका कोई और था ही नहीं। बिस्मा की मॉम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बिस्मा भी बमुश्किल अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। थोड़े दिन यूं ही तकलीफ में गुजर गए, लेकिन फिर उसने अपनी मॉम के लिए खुद को संभाला और उनसे कहा कि मॉम, अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना है। पापा का बिजनेस भी संभालना है, वरना सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। पापा ने ये सब कितनी ज़्यादा मेहनत से खड़ा किया था, आप तो अच्छे से जानती हैं। अगर ये सब ज़ाया हो गया तो पापा की सारी मेहनत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी मॉम कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जैसे ही मेरी इद्दत ख़त्म होगी, मैं ऑफिस जाकर वहाँ की मामलात देखूंगी। जब तुम्हारे पापा इस बिज़नेस को खड़ा कर रहे थे, तब हम दोनों ने मिलकर काम किया था। उसके बाद तुम्हारी पैदाइश हुई और मैं तुम्हारे साथ मसरूफ़ हो गई। लेकिन अब ऑफिस में संभाल सकती हूँ। मुझे बिज़नेस के मामलात के बारे में अच्छे से पता है। बिस्मा ने शुक्र का सांस लिया कि उसकी मॉम अपने गम से बाहर आकर बिज़नेस संभालने का फ़ैसला कर रही हैं। इसने सोचा वो भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे और कॉलेज जाना शुरू कर दे। काफ़ी दिन से वो कॉलेज नहीं गई थी। फारिया रोज़ाना इसके पास आती और इसके दुख दर्द के मौके पर इसका साथ देती। एक दिन फारिया ने इसे बताया कि मोइज़ नाम का एक लड़का उसे ढूंढते कॉलेज में आया था और इसके बारे में पूछ रहा था। बिस्मा हैरत से कहने लगी, कौन मोइज़? फिर थोड़ा दिमाग पर जोर देने पर उसे याद आया कि एक बार वो उसकी ऑफिस भी गई थी। इसे हैरत हुई कि वो इसे क्यों ढूंढ रहा है। अगले दिन जब वो घर से बाहर निकली और बस स्टॉप पर पहुंची तो देखा कि सामने ही मोइज़ अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसे देखकर बिस्मा हैरान हुई। मोइज़ इसके पास आया और कहने लगा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कॉलेज छोड़ दूं और साथ में आपसे कुछ बात भी कर लूँगा। यूं खड़े रहकर बात करना मुनासिब नहीं है। बिस्मा ने इधर उधर देखा और कहने लगी, ठीक है, लेकिन मुझे काफ़ी हैरत हो रही है कि आप मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। क्या आपके वॉलेट में कोई चीज़ कम थी? मैंने तो सब कुछ वैसे का वैसे ही रहने दिया था, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। मोइज़ कहने लगा, नहीं नहीं, कोई और बात है, आप प्लीज़ आए ना। उसके कहने पर वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। मोइज़ ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कहने लगा कि दरअसल मुझे आपकी ईमानदारी ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। आजकल ऐसे ईमानदार लोग कहीं देखने को नहीं मिलते, इसलिए मैं आपके बारे में जानना चाहता था। तब मुझे पता चला कि आपको मेकअप का बहुत शौक़ है और आप किसी मेकअप कंपनी में जॉब करना चाहती हैं। अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हैं। बिस्मा, जो इसकी बात बहुत गौर से सुन रही थी, कहने लगी, आपकी कंपनी? आप तो वहाँ जॉब नहीं करते। मोइज़ ने आगे से कहा, नहीं नहीं, दरअसल मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। वो कंपनी मेरे पापा ने शुरू की थी और उसके बाद उसका ओनर मुझे ही बना दिया। अगर आप चाहें तो वहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकती हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर बिस्मा फ़ौरन से खुश हो गई। फिर कहने लगी, देखें, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पापा की डेथ हुई है और मेरी मॉम घर पर अकेली होती है। फ़िलहाल तो मैं जॉब नहीं कर सकती, अभी उनका बिज़नेस भी देखना है। ये सब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बाद में सोच कर आपको बताऊंगी। मोइज़ ने इसे कॉलेज के सामने उतारा
तभी इसकी निगाह एक स्याह रंग की गाड़ी पर पड़ी। जब से इसने बिस्मा को गाड़ी में बिठाया था तब से वो गाड़ी मुसलसल इनका पीछा कर रही थी। इसने फौरन से उस गाड़ी की नंबर प्लेट की पिक्चर ली और व्हाट्सएप पर किसी को सेंड किया और कहा कि मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए हैं। कुछ दिन बाद मोइज़ बिस्मा के घर पर आ गया और उसकी मॉम से मिलकर उन्हें बताया कि मैं भी दरअसल बिजनेस ही करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिस्मा मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब करे। मेकअप को लेकर ये बहुत ज़्यादा पागल है और हमें इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। अगर आपकी परमिशन हो तो हम इसे अपने पास ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसकी मॉम ने सुनकर कहा कि मैं तो इसे मजबूर नहीं कर सकती, अगर वो चाहेगी तो वो जॉब कर सकती है, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं। वैसे भी उसे मेकअप का हद से ज़्यादा शौक़ है। अपने पापा की डेथ के बाद से वो बिल्कुल ही खामोश सी रहने लग गई है। मैं भी चाहती हूँ कि वो दोबारा से ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आए। थोड़ी ही देर में वो वापस आने वाली है, तुम उससे बात कर लेना। मोइज़ वहीं बैठकर बिस्मा के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान उसने बिस्मा की मॉम से उनके बिजनेस वगैरह के बारे में भी बहुत सारी बातचीत की। उसे समझ आ गई कि इसके पापा के बिजनेस में कोई गड़बड़ हो रही है। उसे पता चला था कि बिस्मा का पीछा करने वाली गाड़ी भी दरअसल एक ऐसे ही इंसान की है जो इसके पापा के बिजनेस को हथियाना चाहता है। अभी तक वो इस तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने पुलिस में मौजूद एक दोस्त से उस आदमी की डिटेल्स मंगवाई थी। जब उसने उस दिन पहली बार बिस्मा को कॉलेज में देखा तो उसी वक्त उसे देखकर पसंद कर लिया था। वो इसे बहुत ही मासूम और दुनिया से अलग अलग लगी थी, अपनी ही दुनिया में मगन। वो उस दिन अपने किसी कज़न के साथ कॉलेज में आया था। उसका कज़न भी इसी कॉलेज में पढ़ता था और वहीं पर इसकी मुलाकात बिस्मा से हो गई थी। जल्दी में वो अपना वॉलेट भूल गया। वो नहीं जानता था कि वो लड़की इसे ढूंढती हुई उसका वॉलेट वापस देने उसकी कंपनी तक पहुंच जाएगी। बाद में उसके बारे में अक्सर ही सोचने लग गया और फिर एक दिन उसके कॉलेज में आकर उसकी दोस्त से इसके बारे में सवाल करने लगा। तभी से पता चला कि उसके पापा की डेथ हो गई है, जिस वजह से वो कॉलेज नहीं आ रही। लेकिन वो रोज़ कॉलेज के पास वाले बस स्टॉप पर उसका इंतज़ार करता और फिर यूं उसकी बिस्मा से बात हो गई। थोड़ी देर बाद बिस्मा कॉलेज से वापस आई तो सामने मोइज़ को बैठे देखकर हैरान रह गई। उसकी मॉम ने कहा कि ये कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि तुम इनकी कंपनी में जॉब करो। देखो बेटा, तुम्हें भी मेकअप का हद से ज़्यादा शौक़ रहा है और तुम जॉब भी करना चाहती थी। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हारे पापा का बिजनेस मैं संभाल लूँगी, इसके लिए तुम अपना शौक़ मत मारो। अपनी मॉम के कहने पर उसने कहा ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन कॉलेज टाइमिंग के बाद ही आऊँगी, क्योंकि मैं साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाहती हूँ। मोइज़ को कोई एतराज़ नहीं हुआ और अगले दिन से ही बिस्मा ने कंपनी में जाना शुरू कर दिया। यहाँ आकर वो बहुत सी चीज़ों को सीख रही थी और मोइज़ हर चीज़ में उसकी खुद हेल्प करता था। ये देखकर ऑफिस के लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते थे कि उनका खड़ूस बॉस एक लड़की के लिए इतना पागल हो रहा है। दूसरी तरफ उसकी मॉम ने अपनी इद्दत ख़त्म होते ही अपने मरहूम शौहर का बिजनेस संभाल लिया। बिजनेस में बहुत सी गड़बड़ हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन मोइज़ उनकी अक्सर ही मदद कर दिया करता, जिस पर वो हमेशा इसकी शुक्रगुजार रहती थी। अब तो मोइज़ गोया उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था। अक्सर ही वो इनके घर आता जाता रहता। बिस्मा की मॉम इस बात से अच्छे से वाकिफ़ थी कि मोइज़ उनकी बेटी को पसंद करता है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी बेटी के दिल में मोइज़ के लिए क्या है। खुद उन्हें भी मोइज़ बहुत ज़्यादा पसंद था। वो चाहती थी कि वो इनका दामाद बन जाए, लेकिन वो किसी भी तरह से अपनी बेटी पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की मर्ज़ी से ही उसकी ज़िंदगी का हर फैसला किया था, और ये तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, तो इसमें वो उस पर ज़बरदस्ती कैसे कर सकती थी। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने बिस्मा से कहा
کہ तुम्हें मोइस कैसा लगता है। बिस्मा अपनी माँ के सवाल पर हैरान हो गई और कहने लगी, मॉम, आखिर ये किस तरह का सवाल है? वो एक डिसेंट इंसान है, उन्हें कौन पसंद नहीं करेगा? कितनी ही लड़कियां ऑफिस में उन पर मरती हैं, लेकिन वो किसी की तरफ भी निगाह उठाकर नहीं देखते। बहुत ही अच्छे इंसान है वो दिल से इसकी तारीफ कर रही थी। उसकी मॉम ये सुनकर मुस्कुरा उठी। अगले दिन वो सुबह जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई। बस से उतरकर वो कॉलेज के गेट के सामने आने ही लगी थी कि दोबारा से उसे वो स्याह रंग की गाड़ी नजर आई। उसे शदीद हैरत हुई कि वो गाड़ी अब तक इसका पीछा क्यों कर रही है। वो तेज तेज कदम उठाती कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सामने देखा तो कॉलेज के गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। आज तो कॉलेज बंद था। वो भूल कैसे गई कि आज तो सब लोग कॉलेज ट्रिप पर गए थे और उसने ट्रिप पर जाने से मना कर दिया था। आज कॉलेज की छुट्टी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे कॉलेज के लिए निकल आई। अब वो क्या करेगी? वो मुसलसल घबराए जा रही थी। स्याह रंग की गाड़ी एक तरफ खड़ी थी। बिस्मा ने सोचा कि अब मैं खुद को कैसे बचाऊंगी। गली पूरी सुनसान पड़ी थी। उसने जल्दी से बैग खोलकर मोबाइल निकालना चाहा तो इसे याद आया आज तो वो बैग में मोबाइल रखना ही भूल गई थी। घबराहट में वो मेन रोड की तरफ भागने लग गई, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जाती, स्याह रंग की गाड़ी का दरवाज़ा खुला और किसी ने उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। इससे पहले कि वो शोर मचाती या खुद को बचाने की कोशिश करती, किसी ने उसके चेहरे पर रुमाल रखा और बेहोश कर दिया। जब इसकी आंख खुली तो इसका सर काफ़ी भारी हो रहा था। अपने भारी होते सर को इसने बमुश्किल संभाला और अपने दिमाग को होश में लाने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता उसे आसपास का मंजर साफ नजर आने लगा था। इसने देखा कि वो एक आलीशान से कमरे में मौजूद है। आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? इसने खुद से सवाल किया। फिर इसे याद आया कि किसी ने उस स्याह रंग की गाड़ी में खींचकर उसे बेहोश कर दिया था। आखिर ये किसका घर है और मुझे किसने किडनैप किया होगा? वो खुद से सवाल करती इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर को देखते ही इसकी जान निकलने लगी। ये तस्वीर तो उसके पापा के मैनेजर की थी, जो उनके दोस्त भी थे और अक्सर ही इनके घर पर भी आते रहते थे। इसके पापा अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। आखिर वो मुझे क्यों यहाँ पर लाए हैं? अभी वो खुद से सवाल कर रही थी कि उसी वक्त बाहर का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुए। इसने उनसे कहा कि आखिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तो वो कहने लगे, जब तक तुम्हारी मॉम सारा बिजनेस मेरे नाम नहीं करेंगी तब तक मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। अभी तुम्हारी मॉम को कॉल कर रहा हूँ। ये कहकर उसने फ़ौरन से उसकी मॉम को कॉल मिलाई और कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। बिस्मा ने कहा, मॉम आप बिल्कुल परेशान मत होना। वो इसकी आवाज़ सुनते ही घबरा गई और कहने लगी, तुम कहाँ हो? मुझे कुछ तो बताओ। और फिर उस मैनेजर पर गुस्सा करने लगी कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले, अपने ही दोस्त की बेटी को अगवा कर लिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? अगर पैसे चाहिए थे तो आकर मुझसे कह देते। अभी वो इतना ही कह चुकी थी कि उस मैनेजर ने कॉल कट कर दी। बिस्मा काफ़ी घबरा रही थी। कई घंटे उस मैनेजर ने इसे कमरे में बंद रखा और इसे बेहोश कर दिया। जब दोबारा इसे होश आया तो देखा वो अस्पताल में थी। उसके पास मोइस और उसकी मॉम खड़ी थी। फ़ौरन से अपनी मॉम को आवाज़ दी तो इसे होश में आते देखकर उसकी मॉम दौड़ती हुई इसके पास आई और कहने लगी, बेटी तुम परेशान मत हो, हमने तुम्हें बचा लिया है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। इसने सवालिया नज़रों से मोइस की तरफ देखा तो उसकी मॉम ने कहा कि मोइस की वजह से ही आज तुम बच पाई हो। कुछ वक्त से ही मोइस नोट कर रहा था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। जब उसने सारी डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि जब तुम्हारे पापा जिंदा थे
तब से हमारा मैनेजर कुछ गड़बड़ कर रहा था और तुम्हारे पापा को भी धमका रहा था, और फिर उसने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया ताकि तुम्हारे पापा को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन फिर तुम्हारे पापा की अचानक डेथ हो गई। उसके बाद भी उसने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, और अब वो हम दोनों को धमका कर सारा बिजनेस अपने नाम करवाना चाहता था। लेकिन शुक्र है कि बरवक्त मोइस पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच गया और उसे अरेस्ट करवा दिया, और तुम्हें हमने अस्पताल एडमिट करवाया। अब तुम किसी भी चीज़ को मत सोचो और अपने दिमाग पर जोर मत दो। अपनी मॉम की बात सुनकर बिस्मा ने मोइस की तरफ देखा और उसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, अगर आप ना होते तो शायद आज मैं उसी के चुंगल में होती और मेरे पापा का सारा बिजनेस भी हमारे हाथों से निकल जाता। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी हेल्प की। मोइस ने इससे कहा कि अच्छा ठीक है, इस तरह की बातें करना बंद करो, मुझे फॉर्मल बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम शायद भूल रही हो कि मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, तो तुम्हारी मॉम मुझे अपना बेटा कहकर बुलाती है। बस तुम ही हो जिसे मैं नज़र नहीं आता। उसकी बात सुनकर बिस्मा हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मॉम की तरफ देखने लगी। उसकी मॉम मुस्कुरा उठी और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो वैसे भी खाली है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। खैर, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग बातें करो। बिस्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मोइस क्या कहना चाहता है। फिर मोइस उसके पास आया और कहने लगा, मैं बहुत डर गया था जब मुझे पता चला कि तुम्हें उसने किडनैप कर लिया है। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जानती हो क्यों? बिस्मा ने उसका सवाल सुनकर नफ़ी में सर हिला दिया और कहा कि क्यों? मोइस ने इसकी मासूमियत देखी तो मुस्कुरा उठा और कहने लगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब से ही तुम्हें पसंद करने लग गया था, इसलिए बहाने बहाने से तुमसे मिलने लग गया। ये सुनकर बिस्मा हैरान रह गई और कहने लगी, आप कितने तेज़ हैं? तो वो मुस्कुरा उठा और कहने लगा, हाँ, लेकिन तुमसे कम हूँ। मेरी जान निकाल दी थी तुमने। आखिर छुट्टी वाले दिन कॉलेज जा ही क्यों रही थी? कम से कम अपना दिमाग तो हाजिर रखा करो। चलो अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम तुम्हें घर लेकर चलते हैं, और फिर हमारी मंगनी की तैयारी भी तो करनी है। मैंने अपने पापा से बात कर ली है, वो भी राज़ी हैं, और वो तुमसे मिलने के लिए भी आए थे। तब तुम बेहोश थी। मैं जल्द ही तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो बार बार नहीं आ सकते। मोइस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने दिल की बात बिस्मा से कर दी थी, और बेशक बिस्मा ने अपने मुंह से नहीं कहा था, लेकिन उसकी निगाहों में साफ लिखा था कि वो मोइस को पसंद करती है। कुछ दिन बाद वो ठीक हो गई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो घर आई तो उसकी मॉम ने उसकी सेहत याबी की खुशी में घर पर एक दावत रखवाई और सब लोगों को उस दावत में बुलवाया, और उसी दावत के दौरान उन्होंने मोइस और अपनी बेटी की मंगनी का ऐलान भी कर दिया। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और हर एक इनकी तारीफ कर रहा था। मोइस तो इससे शरारत में कह रहा था कि अभी शादी भी कर लेते हैं, इतना इंतज़ार कौन करे। बिस्मा उसकी बात सुनकर शर्मा गई और कहने लगी, नहीं, जब तक मेरी डिग्री मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक आप शादी का सोचेंगे भी नहीं। ये सुनकर मोइस बेचारों वाला मुंह बनाकर रह गया और बिस्मा उसकी शरारत समझकर हंस पड़ी। और फिर जब बिस्मा की डिग्री मुकम्मल हो गई तो उनकी शादी की तारीख पक्की कर दी गई, और बिस्मा के बर्थडे वाले दिन दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। अब दोनों अपने घर में एक साथ बहुत ही खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं।
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔